तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि केसीआर खानदान की हुक्मरानी तेलंगाना के लिए खतरनाक साबित होती जा रही है। आज अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम टीआरएस हुकूमत पर से मुकम्मल एतमाद खो चुकी है और मुख्तलिफ पार्टीज के कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2014 में तेलंगाना केसीआर खानदान के लिए नहीं दिया था और ना ही उस बीजेपी के लिए दिया था जिसने तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ बयान दिए थे और उसके खिलाफ काम किया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना गरीब आवाम की तरक्की के लिए, बैकवर्ड और वीकर सेक्शंस की तरक्की के लिए दिया गया था, लेकिन केसीआर खानदान ने तेलंगाना के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां मरकजी और रियासती हुकूमत पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा करके आवाम को परेशान कर रही है, वहीं ज़रूरी अशिया की कीमतों में बढ़ते इजाफे से आवाम परेशान है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत लगातार वैट में इजाफा कर रही है जिससे आवाम के बोझ में इजाफा हो रहा है। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दिल्ली दौरे पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में कई अजला सैलाब से मुतासिर हैं, ऐसे में सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद करने के बजाय वज़ीर आला दिल्ली में बैठकर अपनी सियासी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। బిల్లులు ఇస్తే వచ్చే కమిషన్ల కోసమే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది. ఇవాళ ఆయన కొడుకేమో కాలు జారిందనో లేకపోతే ఆయనకు దెబ్బ తగిలిందనో ఇంట్లో మంచిగా కాళ్ళు బారజాపి కూర్చున్నాడు. ఆయన పోయి ఢిల్లీలో కూర్చున్నాడు, ఈయన పోయి ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్ లో కూర్చున్నాడు. ఇట్లాంటి తండ్రి కొడుకుల చేతుల్లో తెలంగాణ పూర్తిగా నష్టపోతుంది, తెలంగాణ సమాజం కష్టపడుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళని నడిపించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోజు పేపర్ తెరవాలంటే భయం అవుతుంది. ఎక్కడ మహిళల మీద దాడులు జరుగుతాయో, ఎక్కడ గ్యాంగ్ రేపులు జరుగుతాయో, ఎక్కడ హవాలా వాళ్ళు లేకపోతే గ్యాంబ్లింగ్ చేస్తే దొరుకుతారో, దాడులు జరుగుతాయో అని చెప్పి మనం చూడాల్సిన పరిస్థితి. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో మీరు చూసిరు వరుసగా 4-5 రోజుల నుంచి చీకటి కోణాలు. ఈ చీకటి కోణాల వెనకాల ఉన్న టీఆర్ఎస్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన మంత్రులైతే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే స్టిక్కర్ కిటికీలకి బయట వాడిస్తే ఎవడో తీసుకొని పెట్టుకున్నాడు అని ఒకడంటారు. ఇంకోడంటే నాకు మిత్రుడే కానీ దొంగతనంలో మాత్రం నేను లేనంటాడు. అందుకే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అరాచక పాలనను ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి. ఇవాళ सीएलपी क़याद भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने रियासत की आमदनी अपने ज़ाती मफाद के लिए कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट पर लगा दी और हालिया सैलाब और गोदावरी नदी का पानी कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट में दाखिल होने की वजह से जो दीवारें गिर गई हैं उसमें रियासत के अवाम का पैसा भी हुकूमत की नाअहली की वजह से बह गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट से अब तक 1 एकड़ अराजी को भी पानी नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कायदीन बहुत जल्द कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। తీసుకొని పోయి ఢిల్లీలో కూర్చున్నారు. మరి మీకు సంబంధించిన ఇంకొక మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మంత్రి గారు మీ కుమారులు వారేమో ఇంట్లో అరెస్టులో ఉన్నారు. మిగతా మంత్రులు ఎవరు మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేరు. మీతో పాటు చీఫ్ సెక్రటరీని కూడా తీసుకుపోయారు. రాష్ట్రం అతలాకతలం అయిపోయి ఇట్లా అవుతా ఉంటే మీరు వీటన్నింటినీ వదిలేసి ఆడ కూర్చొని ఏం చేస్తా ఉన్నారు? ప్రభుత్వం అసలు పాలన ఉందా లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. దయచేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. మీరు కాళేశ్వరం సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలకి, దేశానికి తెలిసేటట్టుగా బయటకు వచ్చి విస్తృతంగా చెప్పండి ఆడేం జరుగుతుందో. మీరు ఎవరిని పోనీయకుండా ఎందుకు ఆపుతున్నారో అది కూడా చెప్పండి. అక్కడ ఉన్న రహస్యాలు ఏంటి, ఎందుకు పోనీయట్లేదు? పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు పోనీయట్లేదు? నేను సిఎల్పి లీడర్గా నేను చెప్తాను, మేము విజిట్ చేస్తాం. సిఎల్పి బృందంతో నేను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును విజిట్ చేయబోతా ఉన్నా. ఎందుకు మునిగింది, ఎట్లా మునిగింది, ఆ మునిగిపోయిన దాంట్లో ఎన్ని డబ్బులు పోసారు, ఏమైపోతా ఉంది, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఏంటో ప్రజలకు తెలియాలి. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా
మేము ఆ పని చేయబోతా ఉన్నాం. దయచేసి మేము ముందే చెప్తా ఉన్నాం మీడియా ద్వారా, మీరు ప్రజలను ఆపినట్టు ఎవరిని పోనీయకుండా ఆపినట్టు మమ్మల్ని ఆపటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే చాలా తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి. ముందే చెప్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు చూసి వచ్చి రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్ని విషయాలు తెలియాలి కాబట్టి అసలు ముందు అర్జెంటుగా ఈ విషయాలన్నింటి మీద రాష్ట్రంలో ఆస్తులు మునిగిపోయి కొట్టుకొని పోయినాయి, కుటుంబాలు మునిగిపోయినాయి, పంటలు నష్టపరిహారం జరిగింది, గ్రామాలు మునిగిపోయినాయి. వీటన్నిటి మీద అర్జెంటుగా చర్చించి పంట నష్టపరిహారం ఎంత, ప్రజల ఆస్తుల నష్టపరిహారం ఎంత ఎస్టిమేషన్ చేసి ఎన్యూమరేట్ చేపించి తీసుకొని పోయి ఢిల్లీలో కూర్చున్నారు. మరి बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में हुक्मरान जमात टीआरएस सिर्फ 15 सीटों पर महदूद होकर रह जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में किस हल्के से किस उम्मीदवार को मुकाबला करना है पार्टी हाईकमान उसका फैसला करेगी। उन्होंने वाजे किया कि इंतखाबात में मुकाबले के लिए पार्टी के किसी भी कायद को हल्के का इंतखाब करने का इख्तियार नहीं है और ये रिवायत बीजेपी में पाई नहीं जाती। बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के हल्के मुनुगुडु में जमीनी इंतखाब न आने की कांग्रेस ख्वाहिश रखती है, जबकि हुक्मरान जमात टीआरएस इस हल्के में जमीनी इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, अगर वहां के अवाम जमीनी इंतखाब चाहते हैं तो अवाम की राय का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कैसीनो के धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ जारी धावों पर तबसरे करते हुए कहा कि कैसीनो के साथ दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में टीआरएस के अरकान असेंबली मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई धांधलियों के खिलाफ मरकजी वजारत आबी वसाइल से शिकायत की जाएगी। इस सिलसिले में साबिक रुकन पार्लियामेंट जी विवेक की क़यादत में बीजेपी का एक वफद दिल्ली रवाना होगा, जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में पाए जाने वाली खामियों पर रिपोर्ट पेश करेगा। उर्दू के 2 सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीज़ अहमद जॉइंट एडिटर रोज़नामा एतमाद और जनाब हबीब अली जिलानी ब्यूरो चीफ INN न्यूज़ चैनल की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बायस उन्हें 2 मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक करवाया गया। जनाब अजीज़ अहमद को अवेसी हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में शरीक करवाया गया है। जनाब हबीब अली जिलानी को दुर-ए-शहवार हॉस्पिटल पुरानी हवेली के इंटेंसिव केयर यूनिट में शरीक करवाया गया है। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी हालत में कुछ बेहतरी हुई है। दवाखाने में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने पहुंचकर अयादत की। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर जनाब M.A. माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन और दीगर ओहदेदारों ने उन दोनों सहाफ़ियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआओं की गुजारिश की है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई मकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। रियासत में बेशतर मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत के अजला रंगारेड्डी, विखाराबाद, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, निजामबाद, मंचिरियाल, कामारेड्डी, राजन्ना, सिरसिल्ला, मेदक, संगारेड्डी, महबूब नगर, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवाल और वनपर्ती में कई मकामात पर बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो तालाबों, नहरों, झीलों के करीब बिजली चमकने के दौरान न जाएं। बिजली के आलात और बिजली के खंभों से भी दूर रहने की ख्वाहिश की गई है।
माह मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने शहर हैदराबाद की बीबी के अलावा पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। बीबी के अलावे में ज़ायरीन की हाजिरी के पेश नज़र मुनासिब और बेहतर बंदोबस्त गाड़ियों के ठहराए जाने के इंतजामात के सिलसिले में ट्रैफिक ACP साउथ जोन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इंतजामात को गुज़िश्ता 2 साल से बेहतर करते हुए आवाम को सहूलत पहुँचाना ट्रैफिक पुलिस का अहम मकसद है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के रुख की तब्दीली, पार्किंग के इंतजामात का मीट चौक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ जायजा लिया गया है। इस इलाके में तंग गलियां हैं, आवाम को चाहिए कि वो भी इन इंतजामात के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस से ताउन करे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिनों के दौरान इस इलाके में सड़कों पर गाड़ियों को ना ठहराएं। वाज़ेह है कि तारीखी बीबी के अलावे से हर साल बीबी के अलम का जुलूस निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले में समंदर में गर्क इंजीनियरिंग के तुलबा की लाशों को निकाल लिया गया है। आज 5 तुलबा की लाशों को निकाला गया, जबकि गुज़िश्ता रोज 1 लाश निकाली गई थी। इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए NTR हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अंकापल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेरे तालीम 15 तुलबा गुज़िश्ता रोज दोपहर में इम्तिहान के अख्ताम के बाद रामबली मंडल के सीतापालम इलाके में तफरीह के लिए समंदर गए थे। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम से ताल्लुक रखने वाला जगदीश, गुंटूर जिले के सतीश, अनकापल्ली जिले के जयशवंत कुमार, मुनागापा से ताल्लुक रखने वाले सुरेश तेजा, उसी मंडल से ताल्लुक रखने वाले गणेश, एलामंचल इलाके का रामाचंदू, नरसमपेट मंडल का पवन और दीगर 8 समंदर में उतरे। कुछ ही देर में एक बड़ी लहर उनमें से बास को बहा ले गई। ताहम उनके साथियों ने चीखों पुकार शुरू कर दी, जिस पर वहां मौजूद माहिगिरों ने तेजा को बचाने में कामयाबी हासिल की, जबकि दीगर नौजवानों की तलाश का काम किया जा रहा था। तेजा को किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज 19 साल सूर्य कुमार की लाश का पता चला। बकिया तुलबा की तलाश का काम जारी था और बकिया तुलबा की लाशें बरामद हुई। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के एक होटल में हालत नशा में 5 अफराद ने हंगामा आराई की और एक शख्स के साथ झगड़ा किया। यह वाकया होटल में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया। तफसीलात के मुताबिक हालत नशा में ये अफराद होटल में पहुंचे और एक शख्स से झगड़ा करने लगे। इसी दौरान होटल के मालिक कृष्णा ने मुदाखलत करते हुए उससे होटल से चले जाने की ख्वाहिश की। ताहम उन्होंने कृष्णा पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया और होटल के सामान को बिखेर दिया। उन्होंने होटल के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने होटल मालिक पर हमला किया। इस बात की शिकायत होटल के मालिक ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर CCTV फुटेजेस का जायजा लिया। पुलिस इस शिकायत की बुनियाद पर मुलजिमीन की तलाश कर रही है। लंगर हाउस टीपू खान ब्रिज इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई। ये वाकया जुमे की शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने कार में आग के शोले देखे और जल्द ही गाड़ी से उतर गया, जिसके साथ ही ये कार शोलापोश हो गई। ड्राइवर की चौकसी की वजह से उसकी जान बच गई। इस बात की तलब फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक ये कार मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गई थी। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस मामले की जांच की जा रही है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी ममारी के सिगरेट की स्मगलिंग की कोशिशों को कस्टम्स के ओहदेदारों ने नाकाम बनाते हुए बड़ी तादाद में उन सिगरेट्स को जब्त किया और 6 मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया। कस्टम्स के ओहदेदारों ने दुबई से आने वाली फ्लाइट के उन मुसाफिरीन के सामान की तलाशी ली, जिनमें उन सिगरेट्स का पता चला जो गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद स्मगल किए जा रहे थे। उन सिगरेट्स में इनमें टोटल 22,600 सिगरेट्स और 940 ई सिगरेट्स, जिनकी मालियत 11,66,000 बताई गई है, जब्त किए गए हैं। इन मुसाफिरीन से पूछगछ की जा रही है ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि ये सिगरेट किस कीमत पर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। वाज़ेह है कि जुमेरात को भी इसी एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में बैरूनी सिगरेट्स को जब्त किया गया था। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े ओंकार नगर की एक फर्नीचर की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। बड़े पैमाने पर आग के साथ कसीब धुएं को देखकर मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिसके बाद 2 फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े के सबब धुआं इलाके में फैल गया। फर्नीचर की दुकान के करीब पेट्रोल पंप होने के सबब मकामी अफराद खौफजदा हो गए, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। शहर हैदराबाद में वाक़े केबल ब्रिज से छलांग लगाकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त 26 साला
सौम्या के तौर पर की गई। वो साईनगर हफीजपेट मियापुर की रहने वाली बताई गई। हाल ही में इस खातून ने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद से वो सेहत के मसाइल का शिकार थी। कल शाम 6 बजे वो घर से रवाना हुई और केबल ब्रिज पहुंची और खातून ने केबल ब्रिज से दुर्गम चेरुवू में छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक ये मामला मुश्तबा नहीं है, बल्कि इस खातून ने खुदकुशी की है। पुलिस ने आज नाश को बाद पोस्टमार्टम विसा के हवाले कर दिया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।